Hello dear students, welcome to the class today. So children, we have to practice the map work which is supposed to be coming for your term 1, and for that purpose map work is extremely important. Here what we are trying to understand is that for the term 1 the map work that we have to do, it would be fetching you good marks. So a lot of sample papers are there on the websites, in the market. When you go through these sample papers, dear students, then we understand that how this map work is to be done. Children, this map work, for completing this map work, what we are doing is we are first understanding which are the map works that would be coming for term 1. Right now what we are doing, dear students, we are going to practice the map work that would be coming for term 1. First, an important map work that you need to practice is the major soil types. कितनी तरीके की मिट्टी है, which are the different soil that is found all over India, all over the country. When we go through it properly, जब हम इसको अच्छे से देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, then we are understanding that the major soil types that we are talking about. First, we will be solving this major soil types one by one. Today we are going to discuss all these maps that are important for term 1. So come, let's see. So students, major soil types, just see the map is here. Children, these maps are extremely important. Let's start the map work. Understand how the map work is to be done. Children, this is the index. Please understand, पूरी इंडिया में the soil that is distributed, the way we are living in these areas, it is very much characterized by the kind of soil, the type of soil that exists in these areas. सबसे पहले the first soil type that we have is forest and mountainous. Forest soil and mountainous soil, these are जंगल वाले पौधे हैं. जंगल वाला जो एक मिट्टी होती है वो अलग होती है, पहाड़ों की मिट्टी थोड़ी अलग होती है. सो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस. नेक्स्ट दैट वी हैव इज alluvial soil. Got it? Just see the alluvial. काफ़ी area we are covering with the alluvial soil. We have the red and the yellow soil. Characteristic features हम पहले ही discuss कर चुके हैं. I'll be again showing it to you some of the characteristic features of the soil. Then we have the black and the laterite soil. Black soil and the laterite soil. Last is the arid soil. Now children, please understand कि अब यहाँ पे you need to have a brief idea about the India's physical features. कहाँ पे mountains हैं, कहाँ पे forest हैं, where is the alluvial plain, the red and the yellow. तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, just check this. If you can see mountainous region, yes dear students, काफ़ी पहाड़ हैं यहाँ पे, काफ़ी mountains है, and these mountains are clearly signifying a very different kind of a soil structure. So children, you need to understand the soil structure, the map work that is being mentioned here, and mountainous soil के लिए you are marking these areas. ठीक है, ये आप मार्क कीजिएगा. अनदर थोड़े से माउंटेन्स इधर भी है ना. In the northeastern region we have got few mountains with lot of beauty, क्योंकि इन्हीं माउंटेन से टकरा के जो बादल बे ऑफ बंगाल से आते हैं, वो बादल इन्हीं पहाड़ों से टकरा के सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है. मैक्सिमम रेन्स अकर इन दिस एरिया. Okay, so you can easily see this kind of the structure that is there, the forest area that is there is very significant.
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज ऑलवेज फॉर्म्ड, हमेशा ये एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस एरिया. ये देखिए, दिस इज द एलुवियल सॉइल, वेरी फर्टाइल सॉइल. गंगा की मिट्टी, गंगा लेके आती है सॉइल को, एंड द वे गंगा इज projecting, Ganga is bestowing its blessing on the northern plains. It is this area, as you can see, highly agricultural area. Highly agricultural, yes dear students. इतनी अच्छी जो agricultural practices हैं, the best kind of agricultural practices that we have in North India, it is because of this alluvial plain. ये एलुवियल मिट्टी कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग ऑल फ्रॉम दी विद दी गंगा रिवर. नॉट ओनली गंगा, आई एम सो सॉरी, कंटिन्यूसली आई एम सेइंग गंगा. देयर आर मेनी रिवर्स फ्लोइंग इन दिस एरिया. लॉट ऑफ रिवर बॉडीज आर देयर विच आर कमिंग टूवर्ड्स. यहाँ से बड़ा लंबा हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके इट इज़ कमिंग एंड ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे आके इट इज़ ड्रेनिंग. दैट्स वाई जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र से मिल रही है, देयर वी हैव द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेल्टा. दिस रीजन माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एज अ डेल्टा. ओके, अब आप ये देखिए, एलुवियल के बाद वी आर सीइंग द रेड एंड द येलो सॉइल. चिल्ड्रन प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो लाल मिट्टी है, दिस रेड एंड येलो सॉइल, दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि दिस इज फाउंड इन द रीजन वेयर वी हैव लिटिल बिट ऑफ प्लेट्यू. थोड़ा सा पहाड़ी तो नहीं होता है, लेकिन पठारी इलाका होता है. प्लेट्यू यू कॉल इट एज पठार. पहाड़ तो हो गए पहाड़, द माउंटेन्स आर देयर, दैट इज पहाड़. देन यू हैव दिस रीजन्स हियर विच इज रेड एंड येलो सॉइल इज फाउंड हियर, एंड it is in this direction, in the towards the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं है, लेकिन साउथ के तरफ बढ़ते हैं तो साउथ ईस्ट के तरफ ये सॉइल आपको काफ़ी मिल रहा है. एंड मेजरली साउथ में यहाँ पे भी ये आपको काफ़ी यू विल बी गेटिंग, बिकॉज दीज आर द एरियाज जहाँ पे कि लॉट ऑफ वेदर फेनोमेना, वेदर चेंजेस आर नॉट ऑकरिंग एज इट इज़ वेरी नियर टू द सी. आप देख रहे हैं इधर भी सी है, इधर भी सी है. सो बीइंग वेरी नियर टू द सी, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर वेरी डिफरेंट. ओके, एंड ब्लैक सॉइल इज हियर. ये आप देख लीजिए यहाँ पे, हियर इज द ब्लैक सॉइल. ये काली मिट्टी जो है, बेस्ट फॉर कॉटन. स्टिकी मिट्टी होती है, कॉटन आराम से ग्रो करता है. फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए टू ग्रो दी कॉटन. कॉटन की ग्रोथ के लिए अगर फॉगी वेदर हो गया, रेनी सीजन हो गया, देन दैट इज़ नॉट देयर. दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट्स, अब व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई हियर, व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज विच ऑल स्टेट्स आर सिचुएटेड इन दिस रीजन. कौन कौन से स्टेट्स हैं? सो हियर वी फाइंड MP, देन हियर वी फाइंड द महाराष्ट्र, देन हियर वी फाइंड द छत्तीसगढ़. तो यहाँ पे जो आपको मिट्टी मिल रही है, काली मिट्टी है, एंड गुड फॉर वेरी मेनी क्रॉप्स. काफ़ी सारे क्रॉप्स जो है वो इधर ग्रो हो रहे हैं. दिस इज ब्लैक. देन वी कैन सी द लैटेराइट. लैटेराइट सॉइल क्या होता है? लैटेराइट सॉइल में लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अ लैंडफॉर्म इज़ देयर, ठीक है, पूरी ज़मीन है, पूरा सॉइल है, वहाँ पे दिस काइंड ऑफ अ सॉइल इज़ देयर. तो वहाँ पे लगातार अगर बारिश हो रही है, इफ़ देयर आर कंटिन्यूअस रेन्स, तो उसके वजह से लॉट ऑफ रेन्स की वजह से दिस लैटेराइट सॉइल हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लैंड फॉर्म्स इन दीज एरियाज. अब आप ये देख लीजिए लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ पे है. बहुत जगह पे वी आर नॉट गेटिंग द लैटेराइट सॉइल, बट येस सम ऑफ द लैटेराइट सॉइल वी आर गेटिंग हियर. यहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात के बॉर्डर में वी आर गेटिंग सम लैटेराइट सॉइल. देन वी हैव टुवर्ड्स दी महाराष्ट्र कुछ सॉइल इधर भी हैं. एंड बांग्लादेश और इधर की तरफ तो हम नहीं देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर.
Here we are also finding some laterite soil in the Kerala region. Kerala and Karnataka दोनों मिला के थोड़ा सा जो है this laterite soil we are getting here. अब सबसे नीचे में जो हम आते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, this is the arid soil. Arid soil, सूखी मिट्टी, बालू, okay, and just see here is the main feature of this arid soil. Arid soil का main feature जो है that is it is dry. The agriculture here is very least. सारे you get all the bushes and the scrubs in this area. इस एरिया में सबसे ज़्यादा झाड़ झंखाड़ मिलेंगे आपको, ठीक है. bushes you are getting in these areas. That is what is the characteristic features of the arid soil. arid soil, लेकिन आप ये देख लीजिए हमारे यहाँ पे बहुत कम जगह है जहाँ पे कि arid soil we are getting. Very less places there where we are getting this arid soil, and that is Rajasthan region. So here Jammu Kashmir, Ladakh, थोड़ा states जरूर समझ लेना. alluvial में you have whole of the UP, Punjab, Haryana, all the rivers that are draining these areas, सारी नदियाँ यहाँ बह रही हैं. Then you have जहाँ पे कि नदियाँ हैं लेकिन the soil conditions and the soil structures are very different. Good for all kind of agriculture, red and yellow soil. इसके बाद तो काली मिट्टी है. Black soil is available here, and ये गुजरात का भी काफ़ी सारा abundant part is there where the black soil is available. Okay, so children, black soil somewhere very important and good for agriculture. Agriculture of very limited goods, very limited food. हर तरीके का एग्रीकल्चर आप इस तरह की ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं. That is there. Then you have the laterite soil and then you have the arid soil. ठीक है, laterite आप देख लीजिए, very limited places में we have the laterite soil, आप देख सकते हैं. Okay. Now arid soil very limited. In just this corner we have the arid soil. It is also extending towards the Pakistan का भी जो ये region है, this area, this region that is situated in Pakistan is very much dry region. Okay, ये हो गया forest and mountainous region, alluvial region, red and yellow, black, laterite, arid. Name of the states is important. ठीक है, so this is what we have done. Red and yellow soil का यहाँ पे देखो some characteristics are there. Deccan Plateau में available है. Yellow and red soil. It is also found in Odisha, Chhattisgarh, southern parts of middle Ganga plain. Laterite soil is Latin word later से मिलता है, जिसका मतलब होता है which means brick. Later, बाद में जो फॉर्म हो रहा है, बाद में जो बन रहा है, उसको हम लैटेराइट सॉइल में काउंट कर रहे हैं. वेस्टर्न घाट रीजन जो है महाराष्ट्र उड़ीसा में, सम पार्ट्स इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, दैट वी आर फाइंडिंग द लैटेराइट सॉइल. अब ये जो सॉइल है, इट इज सपोर्टिंग डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. ये जो सपोर्ट है ये डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल रहा है. इट इज़ वेरी ह्यूमस रिच. थोड़ी सी इनकी क्वालिटीज़ भी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा. ह्यूमस कंटेंट काफ़ी होता है इसमें. ओके, एंड जनरली वी हैव लॉट ऑफ लैटेराइट सॉइल का और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो सेमी एरिड होता है, हल्का सूखा हल्का गीला होता है, इसीलिए ह्यूमस कंटेंट इज पुअर एंड दे आर प्रोन टू इरोजन. बहुत जल्दी लैटेराइट सॉइल में बहुत तेज़ी से पानी बहता है, सो देयर इज लॉट ऑफ इरोजन एक्टिविटीज हैपनिंग एंड appropriate soil conservation techniques are there in Kerala, Tamil Nadu, that it is very useful for growing tea and coffee. चाय कॉफ़ी के लिए this area is very good for cultivation. एरिड सॉइल में आप देख लीजिए, वेरी क्लियरली इट इज़ मैंशन कि एवापोरेशन इज़ फास्टर, सॉइल इज़ लैकिंग ह्यूमस एंड मॉइस्चर.
लोअर हराइजन जो है सॉइल का, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ नोड्यूल्स, छोटे छोटे कंकड़ नोड्यूल्स हैं, एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड दैट इज देयर। प्रॉपर इरिगेशन होता है इन सॉइल्स में, इट इज़ बिकमिंग कल्टिवेबल एज इट हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत है। ये फॉरेस्ट सॉइल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। माउंटेन्स की तरफ आपको ये फॉरेस्ट एरियाज मिलेंगे जहाँ पे कि सॉइल इज़ वेरी गुड एंड वेरी फर्टाइल। ओके चिल्ड्रन, अब हम दूसरा वाला मैप देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट मैप। पहला तो हो गया ये, व्हाट इज द नेक्स्ट मैप? कम लेट्स सी। Important second map, dear students, we are understanding about major rivers and dams. कौन सी नदियां हैं और उन नदियों के ऊपर कौन सा डैम है, कौन सा बांध बना हुआ है, we are trying to understand that. सबसे पहले the first dam that we are talking about is the Salal project. Salal, Jammu and Kashmir में look at the rivers, that so many rivers are coming out of this region. और इतने सारी नदियां हैं तो इसके ऊपर तो डैम बनता है, बांधना पड़ता है ना नदी को, नदी बांध दी जाती है। डैम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो हियर वी हैव द सलाल प्रोजेक्ट, जिसमें वी हैव द इंडस रिवर, झेलम, चनाब, राबी एंड सतलज। This is what is the Salal project. Then we have the Beas project. ब्यास इज अ नदी। एक्चुअली वो ना एक सेंट के नाम पे ये नदी का नाम है, जिसको हम ब्यास कहते हैं, बट ओरिजिनली इट इज कॉल्ड एज रिवर व्यास। व्यास नदी नाम करके हम इसको ब्यास होने लग गया, बट ओरिजिनली इट इज द व्यास। ओके, और ब्यास नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? जस्ट सी, इट इज द भाखड़ा नंगल डैम। Whole of Punjab is irrigated by this dam water. Electricity generation, पूरा का पूरा पंजाब, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, it is because of the Bhakra Nangal Dam. Okay, so this is something that is extremely important. इसके बाद सबसे शुरू हमने एकदम नॉर्थन पार्ट से शुरू किया है, सलाल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल। अब एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हैज़ बीन देयर, एंड दैट इज़ द टेहरी डैम। व्हाट इज़ इट चिल्ड्रन? इट इज़ द टेहरी डैम। टेहरी डैम जब आप देख रहे हैं तो टेहरी डैम में आपको यू विल बी गेटिंग lot of course electricity facilities there. Hydroelectric power has been generated, nearby people have been helped a lot, and this dam is helping the people to overcome and practice lot of agricultural practices. That is what Tehri Dam is all about. Tehri Dam, okay, in Uttarakhand. Tehri Dam in the Uttarakhand. This is a very frequently asked question that कोई भी डैम का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, एंड देन इट हैज टू बी सेड विच इज दिस डैम, आइडेंटिफाई द डैम। ओके, सो हियर वी हैव द टेहरी। टेहरी के बाद हम नीचे आते हैं और ये गंगा नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है, वेरी फेमस नेशनल पावर प्लांट, जहाँ से कि लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड, इज नौरोरा। ठीक है, नौरोरा, प्लीज रिमेंबर, उत्तर प्रदेश के आसपास। ये एक्चुअली जहाँ पे दिल्ली ना, दिल्ली से when you go towards Noida, you will be finding this dam which is the Naurora Dam. ठीक है, गंगा नदी बहुत पास में है, उसी उधर ही से है, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दैट साइड। नदी के ऊपर तो ये नहीं बना हुआ है, दिस इज नॉट अ डैम, दिस इज अ पावर प्लांट प्रोजेक्ट। अब आप देखो, मैंने कहा था ना कि नॉर्थ में देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स, जस्ट लुक एट द रिवर बॉडीज। ओके, हियर वी हैव द शारदा रिवर, टेहरी डैम गंगा रिवर पे बना है, यू हैव द यमुना रिवर, यू हैव द घग्गर रिवर, गंडक, सोन, कोसी, सारी नदियां हैं। आप तिलैया डैम इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे सम डैम्स आर हियर जहाँ बहुत सारी नदियां एक साथ मिल रही हैं। सो हियर वी हैव द तिलैया डैम,
and then you have the Konar Dam. ये सारे these are the projects, dams and the projects that the Indian government has taken up to, to make the people understand the importance of development. देखो develop तो करना है. Anybody and everybody who is living in the country understands how important development is. बिना development के where will the country stand at an international level? ओके खाना इतना कम पड़ता जा रहा है, हमेशा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड. इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है. सो हियर वी हैव सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट इज़ गिवन हियर. एक तो हो गया माथौर, पैंचेट, रिहंद. रिहंद डैम इज़ अ बिग डैम. रिहंद डैम का नाम याद रखिएगा. उत्तर प्रदेश में लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग थ्रू दिस रिहंद डैम. काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द रिहंद डैम. ओके, अब हमने देख लिया, वी हैव अंडरस्टूड जम्मू एंड कश्मीर, ओके, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी में द डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फॉर नौरोरा, लेकिन बाद में और लोगों को भी चांस मिल गया. गॉट इट. नाउ चंबल रिवर के ऊपर वी हैव द वन वेरी बिग इज देयर, दैट इज द कोटा बैरेज. कोटा तो आपको पता है, एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड इन द कंट्री इज़ नोइंग अबाउट दी कोटा सिटी. उसी के पास में ये कोटा बैरेज है. कोटा बैरेज एक्चुअली इट्स अ सेमी कंस्ट्रक्टेड डैम. उसको हम बैराज कह रहे हैं. चंबल रिवर के ऊपर कोटा बैरेज इज़ देयर. and Rana Pratap Sagar, Gandhi Sagar dams. These all dams were constructed for the electronic power and for the generation of electricity in the Rajasthan area. Okay, यहाँ तक हमने देख लिया. दिस इज स्टिल द एमपी रीजन. एमपी में ये सारा हमने देखा. एमपी तक हम आ गए. राजस्थान गुजरात भी देख लिया है. अभी गुजरात पूरा नहीं देखा है. वी हैव टू सी द गुजरात एरिया ऑल्सो. काफ़ी अच्छा डैम और काफ़ी बड़ा डैम है. कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, वर्ल्ड फेमस है. वेरी फेमस डैम इन द वर्ल्ड. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट टुडे. Of course, you are knowing about the Sardar Sarovar project. राजस्थान एंड गुजरात में भी डैम कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन देयर. चंबल नदी है, बेतवा है. चंबल एंड बेतवा आर टू रिवर्स. क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं होती है ना. सो प्रॉपर अरेंजमेंट हैज़ टू बी देयर. एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, बट वाटर इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पसेस. Lot of purposes there which needs to be served through these dams. So we need to be very clear about these dams that are constructed. The dam is of lot of utilization for the common people. आम आदमी के लिए इसका बहुत महत्व है. एंड अब जो डैम, जस्ट नाउ दैट आई वाज सेइंग, द डैम दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा इन गुजरात नियर अहमदाबाद. ये आप देख लीजिए, सरदार सरोवर या एंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ देयर. सबसे बड़ा स्टैचू. हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव थॉट अबाउट गेटिंग सच ग्रेट थिंग कंस्ट्रक्टेड. एंड ये जब हम इसको देख रहे हैं, हियर वी हैव द सरदार सरोवर. Then you have the Hirakud. Hirakud Dam is built on which river? This is a very frequently GK point of view भी ये question कभी कभी पूछा जाता है. तो please do remember the name of the river on which the Hirakud Dam is located, situated. River Mahanadi. ठीक है, please remember the answer. It is River Mahanadi. Then you have south के तरफ आते हैं. When we move towards the south,
हम देख रहे हैं प्रवारा डैम इज देयर, नागार्जुन सागर डैम इज देयर, कोयना डैम is there. These all are to be coming for your term 1. Please go through it properly, my dear students. You need to be very clear on these map works. Okay, एक बार कल फिर I will be showing you these map works. Till then children, keep revising. Thank you so much and all the best to you.